My dear Bacha, Ting Tong. In the present video, we will learn about a chapter, that is 18th chapter of class 5 EVS subject. A seed tells farmer's story. एक बीज बताता है किसान की कहानी. What the seed tells? Let's read out. I am a small seed. I am a small bajra seed. I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. I want to tell you my story. This is a long story, but not mine alone. It's also the story of my farmer, Damji Bhai, and his family. If I do not tell my story now, it might be too late. मैं एक छोटा बीज बाजरे का बीज हूँ और 1940 से एक वुडन बॉक्स मतलब लकड़ी का बक्सा. और मैं चाहता हूँ आपको अपनी कहानी बताना, और केवल अपनी नहीं बल्कि अपने किसान की भी. और किसान का नाम क्या है? दामजी भाई. स्टोरी ऑफ माय फार्मर मीन्स किसान. ओके, आज नहीं बताऊंगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा. आई वॉज बोर्न इन बनगाम इन गुजरात. That year there was a good bajra crop. There was a festive mood in the village. Village means gaon. Our area was famous for its grain and vegetables. Each year, Damji Bhai kept aside some seeds from a good crop. This way, our Bajra family went on from one generation to another. Good seeds were stored in dried gourd, which was coated with mud. But this year, Damji Bhai himself made a strong wooden box to store us. He put it in neem leaves to protect us from insects. Protect means रक्षा करना, किसी को बचाना. He put different seeds in different compartments of the box. मैं गुजरात में पैदा हुआ हूँ और वहाँ पर बाजरा की फसल होती है. गांव के लोगों का बड़ा फेस्टिव मूड था और हमारे एरिया में बहुत सारे ग्रेन्स और वेजिटेबल्स फेमस थे. हर साल दामजी भाई कुछ बीज बचा कर रखते थे. और किस पे बचा के रखते थे? जो लौकी होती है ना, जिसको आप खाते हो, उसके अंदर बीजों को भर के रखते थे और उसको मिट्टी से ऊपर से कवर कर देते थे ताकि वो खराब ना हो. लेकिन इस साल दामजी भाई ने क्या किया? मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स. एक लकड़ी का बॉक्स बनाया और उसमें सब कुछ बचा के रखा. Okay, in those days Damji Bhai and his cousins lived together. It was a large family. Everyone in the village helped each other, even in farming. When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. Oh, those wonderful days. Wonderful मतलब सुंदर प्यारे दिन. With big feast and loads to eat. In those days दामजी भाई और उनके कजिन्स इकट्ठा रहते थे और एक बड़ी फैमिली थी. गांव के लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे, खेती में भी. और जब फसल पकती तो सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते थे. ये बहुत ही प्यारी सी चीज थी. अब याद करते हैं उन दिनों को. कितना अच्छा दिन, कितने अच्छे दिन थे. इन द winter means सर्दी. It would be time to enjoy the undhiya. Undhiya was a dish basically in Gujarat, a kind of stew. All the vegetables were put into a clay pot along मतलब के साथ fresh spices. Spices means masale. The pot was sealed and kept between hot coals. The vegetables cooked slowly in this special cooker on the fields. और सर्दी के दिनों में हम सब ऊंधिया को एंजॉय करते थे. और ऊंधिया क्या है? सब्जियों से बनने वाली एक डिश है जिसमें हम ताजा सब्जी और ताजा मसाले डालकर उसको कोयले पर रखकर पकाते थे. Got it? Oh, I forgot. The pot was placed upside down. That's why the dish was called undhiya or upside down in Gujarati. Undhiya would be eaten with bajra rotis
freshly cooked on the chula. Oh, freshly means ताजा, बिल्कुल ताजी ताजी. And earthy, delicious. Delicious means स्वादिष्ट, बहुत स्वाद. Along with that, इसके साथ homemade butter, curd and buttermilk was served. Farmers would grow many different kinds of crops, grains and vegetables according to the season. मैं आपको बताना भूल गया. क्या बताना भूले हैं कि जो ऊंधिया है उसको ऊंधिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ऊंधिया को पकाते हैं तो पोट को उल्टा कर देते हैं. दैट इज प्लेस अपसाइड डाउन. उल्टा करके पकाते हैं, इसलिए उसको ऊंधिया कहते हैं. उस ऊंधिया को किसके साथ खाते हैं? मक्खन, दही और या फिर छाछ के साथ खाते हैं. और किसान गेहूं उगाते हैं और सब्जियां उगाते हैं मौसम के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग उगाते हैं? सीजन के अकॉर्डिंग. द फार्मर्स केप्ट एनफ फॉर देयर. एनफ मतलब काफी, मतलब बहुत सारी चीजें, for their needs and sold the rest to shopkeepers from the city. Some farmers also grew cotton at home. Family members spun the cotton. Spun मतलब बुनते हैं, काटते हैं. Cotton on a charkha to make clothes. When times changed over the years, many changes took place in the village. Some places could get water from the canal. They said the canal brought water from far away, where a dam had been built on a big river. Then electricity came, switch on the button and there was light. The farmer gave enough for their needs. अपनी ज़रूरत के लिए वो, need means ज़रूरत के लिए वो सामान रखते हैं, बाकी को बेच देते हैं. और वो कॉटन उगाते हैं, कपास जिसको आप रुई कहते हो, है ना. और उससे वो चरखे पर उसका धागा बनाते हैं, फिर कपड़े बनाते हैं. अब गांव में नहर, कैनाल मतलब नहर से पानी आता है और गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है. बटन दबाया, स्विच ऑन द बटन, यानी कि बटन को दबाओ एंड देयर वाज लाइट. और अब लाइट आ गई थी गांव में. गॉट इट? People found that only one or two crops like wheat and cotton got better price in the market. So most farmers began to grow. Begin मतलब शुरू किया. To grow only these. Soon means to say jaldi. Soon we old friends bajra and jwar and also vegetables were forgotten and dismissed. Even from Damji Bhai's field, farmers even began to buy seeds from the market. People said there were new kinds of seeds. So the farmers did not need to store seeds from the old crop. Now people in the village cooked and ate together only on very special days. As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the fields. When the seeds have changed, how could food ever taste the same? People found, लोगों ने ये पाया. क्या पाया? कि अब केवल दो ही फसलों में ज्यादा कीमत मिलती है, यानी कि एक गेहूं को बेचने से ज्यादा पैसे मिलते हैं और एक कॉटन को बेचने से ज्यादा पैसे मिलते हैं. सो बाजरा, ज्वार और वेजिटेबल्स को लोगों ने उगाना छोड़ दिया और लोग उनको भूल भी गए. यहाँ तक कि दामजी भाई के खेत में भी उनको नहीं उगाया जाता था और लोगों ने कहा कि उनको नए बीज चाहिए. सो फार्मर डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स. अब उनको सीड को स्टोर करने की जरूरत नहीं थी. वो नए बाजार से सीड खरीदते और उनको उगा लेते थे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग. और अब गांव के लोग क्या करते थे? अब गांव के लोग कभी कभी इकट्ठे होकर खाना खाते थे, समझ रहे हो, और अपने पुराने दिनों को याद करते थे. हाँ, कितना अच्छा था वो पहले वाला वक्त. When the seed have changed, लेकिन अब जब बीज बदल गए हैं तो खाने का स्वाद भी बदल गया है. टेस्ट मीन्स स्वाद, चेंज मीन्स बदलना. दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड. दामजी भाई बूढ़े हो गए. His son Hasmukh looked after the fields and the family. Hasmukh was making a lot of money from farming. He rebuilt the house, brought new machines for farming. He used an electric motor to pump water.
He bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plow the field. Plow means खेतों में हल चलाना. The tractor could do in a day what the bullocks would take many days to do. अब दामजी भाई तो बूढ़े हो गए और उनका बेटा कौन आया? हसमुख. हसमुख ने खेतों को और फैमिली को देखना शुरू किया और हसमुख ने बहुत पैसे कमा लिए और उसने अपना घर भी बनवाया, उसने मशीनें भी खरीदी, उसने मोटरसाइकिल भी खरीदी. बॉट मीन्स बॉट अ मोटरसाइकिल. बॉट मीन्स खरीदना. उसने मोटरसाइकिल खरीदी, एक ट्रैक्टर खरीदा जिससे वो शहर में आ जा सके और ट्रैक्टर से खेतों में हल चला सके. एक ट्रैक्टर बहुत जल्दी से काम करते थे जितना कि बैल बहुत दिनों में करते हैं जिस काम को. हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली. वाइजली मतलब बुद्धिमानी से. वी ग्रो ओनली what we can sell in the market at a good price. With profit from our fields, we can improve our life. Improve means to say अच्छी बना सकते हैं अपनी जिंदगी को. We can make progress. हम उन्नति करेंगे. Lying forgotten in the wooden box, I and the other seeds had our doubts. It's all the really progress. There is no longer any need for seeds like us and animals like the bullocks. After the tractor has come, even people who worked on the field are no longer needed. How will they earn money? What will they live on? अब जो हसमुख है उसने कहा कि हम बुद्धिमानी से खेती करेंगे और केवल वो उगाएंगे जो बाजार में अच्छी कीमत देता है, यानी कि गेहूं उगाएंगे और कॉटन उगाएंगे. तो जो बाजरा वाला बॉक्स था वो तो पीछे ही कहीं छूट गया और उसको कोई भी ओपन करके भी नहीं देखता था, है ना. और अब गांव में खेतों में बहुत ज़्यादा लोगों की और एनिमल्स की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एनिमल्स का काम कौन करने लगा था? ट्रैक्टर. गॉट इट. तो अब जिन लोगों का रोजगार छूट गया था, जो खेतों में काम नहीं कर पाते थे, तो वो मनी कैसे कमाएंगे, कैसे रहेंगे? More and more expenses, the next 20 years saw even more changes. Without cows and buffaloes, there was no cow dung to be used in the field as fertilizers. Hasmukh had to buy expensive fertilizer. The new kind of seeds were such that the crop were easily affected by harmful insects. Medicines had to be sprayed on the crops to keep away the insects. Oh, what a bad smell. Bad means buri, gandi si. Smell means badbu. These had, and how expensive. Expensive matlab kharchila. Kitna zyada kharchila. The canal water was not enough for the new crops. All the farmers used to pump to lift water from deep under the ground. To meet all these expenses, loans had to be taken from the bank. और अब क्या हुआ कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए और उन चेंजेस में क्या हुआ कि खेतों में गाय और भैंस ना होने की वजह से अब उनको गोबर भी नहीं मिलता था क्योंकि गोबर को वो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते थे अपने खेतों में, है ना. लेकिन अब क्या हुआ कि अपने फसल को कीड़े से बचाने के लिए, दिस इज द इंसेक्ट, कीड़ों से बचाने के लिए हसमुख को क्या खरीदना पड़ा? एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स. ओके. और एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर जब खरीदे तो उनको मेडिसिन भी खरीदनी पड़ी ताकि फसलों पर उसको स्प्रे कर सके. लेकिन इस फर्टिलाइजर से, इन मेडिसिन से बहुत गंदी स्मेल आती थी और इतना सारा खर्च उठाने के लिए, टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस, इस खर्च को उठाने के लिए लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक. बैंकों से लोन भी लिया गया. whatever little profit, where I was, whatever जो भी, whatever means जो भी, little profit was made was used to repay the loan. But there was little profit. Everyone was growing cotton, so the cotton price were not as high as before. The soil itself was no longer the same. Growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil. Had affected the soil so much that now nothing could grow well there. It was becoming difficult. मुश्किल. Becoming मतलब हो गया, बहुत मुश्किल हो गया to earn a living by
farming alone. Whatever little profit was made, जो भी प्रॉफिट उनको होता था थोड़ा बहुत, उसको वो लोन को पे कर देते थे, बैंक में दे देते थे यानी कि। लेकिन इस छोटे से प्रॉफिट से, लेकिन उनको प्रॉफिट बहुत कम होता था, तो एवरीवन, हर कोई व्यक्ति प्रॉफिट के लिए क्या कमाने लगा, क्या उगाने लगा, कॉटन। क्योंकि उनको ये लगता था ना कि कॉटन और गेहूं से ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो जब आप एक ही फसल को धरती पर बार बार उगाते हो तो उससे क्या होगा, उस फसल की कीमत गिर जाएगी, एक चीज। नंबर 2 इज अफेक्ट द सॉइल ऑल्सो। सॉइल मतलब मिट्टी, ये उस मिट्टी की जो कैपेसिटी होती है उसको भी खराब कर देगा। इट वॉज बिकम डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग, और इससे खेती से जीवित रहना या अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल होने लगा। Hasmukh too changed with this time. He is often tensed, मतलब परेशान होता था, एंग्री गुस्सा होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। हसमुख भी बदल गया और हर टाइम गुस्सा और तनाव उसमें रहता था। His educated son Paresh did not want to do farming. उसका एडुकेटेड यानी कि पढ़ा लिखा, उसका पढ़ा लिखा बेटा था परेश, वो खेती करना नहीं चाहता था। He now started work as a truck driver. उसने काम करना शुरू किया एक ट्रक ड्राइवर के रूप में। आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रीपेड, क्योंकि बैंक का लोन भी तो पे करना था। ऑफन परेश डज नॉट कम होम फॉर डेज। परेश बहुत कई कई दिनों तक घर नहीं आता। एट टाइम्स ही इज अवे फॉर अ वीक, कभी कभी तो एक सप्ताह तक वो बाहर रहता था। 2 days बैक व्हेन ही केम होम, पिछले 2 दिन पहले जब वो आया, परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग, उसने कुछ ढूंढना शुरू किया। स्टार्टेड लुकिंग मतलब ढूंढना शुरू करना। बा ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा। आस्क मतलब, आस्क मीन्स टू से पूछा। वेयर इज दादाजीज वुडन सीड बॉक्स, वो दादाजी का लकड़ी का बॉक्स कहाँ पर है। इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक, ये मेरे ट्रक के टूल्स को रखने में हेल्पफुल होगा, तो मुझे वो वुडन बॉक्स दे दीजिए। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू। इट मीन्स कि उन्होंने जो बाजरा का जो सीड था ना, उसमें किसमें, वुडन बॉक्स। सो सॉरी बेटा, वाई इट्स हैपनिंग सो यार। तो उसने कहा कि वो मुझे दे दीजिए। इट मीन्स कि उन्होंने बाजरा का जो बीज था उसको बाहर थ्रो आउट कर दिया, यानी कि फेंक दिया, और उस वुडन बॉक्स में क्या रख लिए, ट्रक के टूल्स रख लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। जर्नी ऑफ अ व्हीट सीड, दिस इज अ, ये गेहूं की यात्रा है। अ फील्ड टू प्लेट, खेतों से प्लेट तक आने के लिए। व्हाट कैन यू सी इन दिस पिक्चर। अब इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करो एंड ट्राई टू मेक योर ओन पिक्चर्स, योर ओन ड्राइंग्स अबाउट द जर्नी ऑफ अ व्हीट सीड, कि जो गेहूं है वो आपकी प्लेट तक कैसे आता है। इन इनिशियल फॉर्म it would be a plant, so you can make a plant by yourself. Okay, this is your homework. Next, after plant, it take into the form of grain. Okay, after grain you may have flour, and then you make this dough for making chapatis, and after that you have chapatis to eat in your plate. So you can draw your own story about a different seed. Okay, you can take a cucumber seed, you can take a radish seed, you can any story of any of the seed. Okay, so this is enough for the present video. Thank you, my sweet angels, and take care of yourself. Please do not go outside to your home, and if you go outside your home, then please make a distance of 6 feet. Take care. Bye.